Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, I am going to cover up certain MCQs from the topic business communication. So they will be, in this video, we'll be covering approximately 60 MCQs and there are approximately 100 to 120 MCQs. So I'll be making two videos for the MCQs of business communication. The description for the link for the second part is also available in the description box. And do mark yourself and tell me at the end of the videos in the comment section how many questions you got correct. Fine. So let's start quickly. Let's not waste time. Question number 1. The term communist is derived from which word? Communist एक लैटिन वर्ड है. लैटिन में कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन. फर्दर एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर. So from these two words, communist as well as communicator, we have got the word communication. So communist is a Latin word. Question number 2. Communication means dash information, feelings and thoughts with others. Communication means exchange of feelings and thoughts with others. Although to receive, conveying also look correct, but since communication is a two-way process, we'll say the word exchange. Grapevine communication is associated with, that's very simple, grapevine communication informal communication होता है. हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में there are two channels, there are formal channels and there are informal channels. Informal communication को grapevine communication कहते हैं. Question number 4. Lateral communication is between. So here we have to understand two terms. एक होता है horizontal communication, एक होता है lateral communication. Horizontal communication is people within the same level. Lateral is also within the same level, but the difference is under horizontal communication, the communication can be within the departments. For example, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में दो लोग सेम लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं. But in the lateral, it has to be the same department. So if in the sales department, two people at the same level are talking to each other, we call it lateral communication. That is the difference between lateral and horizontal communication. So lateral communication is between the same cadre of personnel. Same cadre means same position and same team. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कम्बाइंस. इट्स वेरी सिंपल. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें बोथ ऑडिटरी एज वेल एज विजुअल एलिमेंट्स होते हैं. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर नोन एज. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को हम बैरियर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एक फ्लो प्रोसेस है और अगर फ्लो में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसे हम बैरियर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. पोस्टर्स फॉल अंडर. पोस्टर्स होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. क्यों? हमें पता है पोस्टर्स में हम पिक्चर्स यूज़ करते हैं और अगर हम कोई कोटेशन या कोई कॉन्टेंट लिखते भी हैं तो इट इज़ वेरी स्मॉल, राइट. हम उसे बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं क्योंकि उसका एक विजुअल इम्पैक्ट आना चाहिए. दैट वाइज पोस्टर्स आर विजुअल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि दो सेम लेवल में बात फेस टू फेस हो सकती है, टेलीफोनिक हो सकती है, पीरियोडिकल मीटिंग हो सकती है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जेस्चरल कम्युनिकेशन. जेस्चरल कम्युनिकेशन मीन्स हैंड मूवमेंट्स एंड लेग मूवमेंट्स. इसे हम नॉन वर्बल मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो बिना वर्ड्स के हो रही है, विदाउट वर्ड्स. सो द आंसर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में होते हैं, उन्हें फिजिकल बैरियर्स कहते हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड एक लैंग्वेज बैरियर है. डिनोटेशन और कॉनोटेशंस भी एक लैंग्वेज बैरियर्स है. डिनोटेशन और कॉनोटेशन का मतलब होता है सेवरल वर्ड्स हैव सो मेनी मीनिंग्स. So this is also a language barrier. So here time and distance is a physical barrier. Communication is derived from a Latin word communis. मैंने आपको बताया in the previous question, communis का मतलब होता है common. अगर यहाँ पे communicare लिखा होता तो उसका मतलब होता है to share. Question number 14. Communication starts with. communication को कौन start करता है? communication को sender start करता है. The number of elements in the communication process. Here the number of elements are the 7. हम यहाँ पे 7 elements लिखेंगे. क्यों? सारे elements क्या होते हैं? sender. सेंडर के पास होता है मैसेज, देन देर इज़ अ चैनल, सॉरी देर इज़ एनकोडिंग, देर इज़ अ चैनल, देन देर इज़ डीकोडिंग एंड देन देर इज़ अ रिसीवर. सो ये होते हैं, सो दीज आर द 6 एलिमेंट्स एंड द लास्ट एलिमेंट्स इज फीडबैक. ये होते हैं 7 एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन. अब बात आती है कम्युनिकेशन के दो ब्रॉड एरियाज के होते हैं. इट इज़ नॉट ओरल और रिटन, बिल्कुल भी नहीं. द आंसर इज वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल मीन्स एक कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के साथ होती है और एक कम्युनिकेशन जो विदाउट द वर्ड्स होती है. और वर्ड्स के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो फर्दर दो टाइप की होती हैं, ओरल एंड वी हैव रिटन कम्युनिकेशन. सो द ब्रॉड एरिया जिसमें कम्युनिकेशन को डिवाइड होती है वो होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो हियर द आंसर इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के कौन से एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ए और बी में मेमोज लिखा है, मेमोज आर रिटन कम्युनिकेशन. मेमोज हमेशा राइटिंग में ड्राफ्ट किए जाते हैं. सो ए एंड बी आर नॉट द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मीटिंग्स, presentations and performance reviews.
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की बात आ रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में है वॉइस मेल। वॉइस मेल तो हमें पता है ओरल कम्युनिकेशन होता है, सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिपोर्ट्स एंड ईमेल्स। ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर एंड डायरेक्टिव। ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स कौन देता है? सुपीरियर देता है अपने सबॉर्डिनेट को, राइट। सो इट इज़ अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये ऊपर से नीचे आ रही है, सो दिस इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्समैन। अब ये देखिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक HR डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। HR डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्समैन से बात कर रहा है, सेल्स मैनेजर से बात नहीं कर रहा है, सो दिस इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है क्योंकि सेम लेवल में नहीं है, ये लेटरल नहीं है क्योंकि सेम डिपार्टमेंट में नहीं है, और ये वर्टिकल भी नहीं है क्योंकि अगेन ये सेम डिपार्टमेंट में नहीं है। दिस इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, डायगोनल कम्युनिकेशन को हम क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बनता है। कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। अब ये देखिए HR डिपार्टमेंट का मैनेजर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, टू पीपल विद इन द डिपार्टमेंट्स एट सेम लेवल, दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, या तो कम्युनिकेशन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर ऑफ द मटेरियल। मैंने एक सप्लायर को परचेज का ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है बिकॉज द कम्युनिकेशन इज गोइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर, अब हमें सेल्स ऑर्डर आया है, अगेन बाहर से आया है, अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्योंकि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल ये सब इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। द आंसर इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अ सिमिलर क्वेश्चन अगेन, अगर कम्युनिकेशन इनवर्ड है या आउटवर्ड है, यानी कि इससे पता चल रहा है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और कम्युनिकेशन अंदर या बाहर हो रहा है, तो ये होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगेन। इट कैन बी इन बोथ डायरेक्शन, ईदर इनसाइड और आउटसाइड। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट रीजन इन कम्युनिकेटिंग विद। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, फंक्शंस मतलब काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि काम ठीक से हो तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विद द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ द फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन विद सुपीरियर्स, अगर कोई सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है? डायरेक्शंस नहीं, हम डायरेक्शंस नहीं दे सकते, ऑर्डर्स नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, इट कैन बी कंप्लेंट्स ओनली। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग, सबसे बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग होती है कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग। कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, और ये लिसनिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। डायलॉजिक लिसनिंग, डायलॉजिक लिसनिंग यहाँ से पता चल रहा है डायलॉग, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो ऐसी लिसनिंग को हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में द पर्सन हु इज लिसनिंग वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछ रहा है और कॉन्स्टेंटली आंसर सीक कर रहा है, सो दैट इज अ डायलॉजिक लिसनिंग। रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय, रीडेबिलिटी होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है। पंक्चुएशन इज अ राइटिंग एलिमेंट, ये राइटिंग का पार्ट है। लेंथ ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो द राइटिंग पार्ट, स्पेलिंग इज ऑल्सो द राइटिंग पार्ट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो यू मस्ट हैव सीन पीपल दोज हु आर वेरी गुड स्पीकर्स, वो कभी अपनी वॉइस बहुत हाई करते हैं, कभी अपनी वॉइस बहुत लो करते हैं, पिच मॉड्यूलेशन करते हैं, इसे कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? नो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? नो। इट इज़ अ नीड? येस, बट दैट्स नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज इंफॉर्मेशन एंड पर्सुएशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन गोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। गॉसिप एंड रूमर्स, गॉसिप एंड रूमर्स हमें पता है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में गॉसिप एंड रूमर्स के लिए कोई जगह नहीं है। Example of oral communication, example of oral communication is telephone. All the other are the example of written communication. Which one is the effective audio visual communication? Audio and visual, सिनेमा में ऑडियो होता है, yes, विजुअल होता है, yes, टेलीविजन में भी होता है, ड्रामा में भी होता है, so the answer is all of the above. Question number 38, advantage of written communication. written communication का advantage क्या है? It saves time? No. टाइम तो हमें ज़्यादा लगता है रिटन कम्युनिकेशन में। सेव्स मनी? नो। नीट? दैट्स नॉट द एडवांटेज। द आंसर इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड। रिटन कम्युनिकेशन को एज अ मैटर ऑफ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, रिटन कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है? रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, नोटिस होता है, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज।
डैश कम्युनिकेशन सेव्स टाइम, कौन सी कम्युनिकेशन हमारा टाइम सेव होता है? द आंसर इज ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में यू कैन क्विकली कन्वे द मैसेज बिकॉज द पर्सन इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो इट सेव्स टाइम. डैश रेफर्स टू मेंटल डिस्टर्बेंस. मेंटल डिस्टर्बेंस क्या होती है? वो होती है साइकोलॉजिकल नॉइज. मेंटल डिस्टर्बेंस मतलब आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उसे साइकोलॉजिकल नॉइज कहेंगे. डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ मेंटल डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन इज एन एक्सटर्नल फिजिकल डिस्टर्बेंस है क्योंकि वो बाहर है. नोशन का मतलब होता है आइडिया, इट इज़ नॉट अ डिस्टर्बेंस. और कोहेरेंस का मतलब होता है, कोहेरेंस का मतलब होता है कि जब हम राइटिंग करते हैं या जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस का एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग अ स्पीच, आई विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, देन आई विल इंट्रोड्यूस माई टॉपिक, देन आई विल पॉइंट आउट द मेन टॉप पॉइंट्स एंड देन आई विल वाइंड इट अप. तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, इसे कहते हैं कोहेरेंस. इट इज़ नॉट अ मेंटल डिस्टर्बेंस. सो द आंसर इज फिजिकल साइकोलॉजिकल नॉइज. द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन कैसे आ सकती है? चूज ऑफ वर्ड्स दैट आर शॉर्ट एंड फेमिलियर, बिल्कुल. कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस, बिल्कुल. अचीव अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, yes. So the answer is all of the above. Question number 43. In empathetic communication, empathy का मतलब होता है सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, सामने वाले को अच्छे से समझ पाना. पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन. तो इन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन हम सामने वाले की फीलिंग्स को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बिकॉज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन. क्वेश्चन नंबर 44. कंसाइजनेस हमें पता है देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 गोल्डन रूल्स होते हैं. इसमें कंसाइजनेस का मतलब होता है दैट मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज होना चाहिए. सो द आंसर इज ब्रेविटी. ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, सो कंसाइजनेस का मतलब होता है ब्रेविटी. एरर्स इन लैंग्वेज, ग्रामर एंड विजुअल प्रेजेंटेशन. अगर आपकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या आएगा? आपके मैसेज की क्लैरिटी में प्रॉब्लम आएगी, सॉरी आपके मैसेज की करेक्टनेस में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपने लैंग्वेज और ग्रामर को ठीक से यूज़ नहीं किया है. तो दैट मीन्स द मैसेज इज़ नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन सेलर एंड कस्टमर. अगर सेलर और कस्टमर में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि कस्टमर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजरियल भी नहीं है, इनमें से कोई मैनेजर नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स. इट इज़ अ बिजनेस कम्युनिकेशन. लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, it is about good reading also, it is about good listening also, and it is about good writing also. These all are communication skills. Communication barriers are, communication barriers क्या होते हैं? Receivers का response बिल्कुल नहीं. Avenues through which the messages are delivered बिल्कुल भी नहीं. Obstacles, yes, communication barriers obstacles हैं जो मैसेज को अंडरस्टैंड करने में इंटरफेयर करेंगे, उसे हम communication barrier कहते हैं. And last is circumstances under which communication takes place. No, that's not a barrier, that's the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. सब वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, सब वर्बल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल है एक्सेप्ट ईमेल्स में वर्ड्स यूज़ होते हैं, येस. टेलीफोन कॉल्स में वर्ड्स यूज़ होते हैं, येस. टेक्स्ट मैसेज में वर्ड्स यूज़ होते हैं, येस. एक सिम्बल्स ऐसा है जिसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं. आपको पता है जब हम इमोजीज भेजते हैं, व्हेन वी सेंड द इमोजीज टू द पीपल, तो इसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं बट दीज आर जस्ट सिम्बल्स. सो दीज आर दिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो द आंसर इज बी. Next question. Dash is a wordless form of communication which takes the form of postures, body language, facial expressions, eye contact, tensions, breathing. ऐसा कौन सा communication है जो wordless होता है, जिसमें words नहीं होते हैं? Again the answer is non-verbal communication. According to Richard Fitch, communication process 90% belongs to 90%, यानी कि पूरे के पूरे communication में major portion होता है non-verbal communication का, यानी कि आपके expressions, gestures, postures ये सबसे ज़्यादा impact डालते हैं on the other person. Dash means the position in which you hold your body when you are standing and sitting. जब हम अपनी बॉडी किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं या किस तरीके से हम बैठ रहे हैं उसे हम postures कहते हैं. gestures नहीं होता है, gestures होता है hand movements and the gestures that we are giving. पैरा लैंग्वेज होता है हमारी वॉइस, हमारी टोन, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं. और प्रॉक्सिमिक्स होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो स्पेस कितनी है, उसे प्रॉक्सिमिटी कहते हैं. पॉस्चर्स जो होता है वो हमारा किस तरीके से हमारी बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर्स. द की टू राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे. सक्सेसफुल रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? शुड इट बी टू लॉन्ग? बिल्कुल भी नहीं. द आंसर इज़ यू एटीट्यूड. हमें अपने रेज्यूमे में यू एटीट्यूड यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयर को ये शो करना है कि किस तरीके से वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू दी ऑर्गेनाइजेशन. हाउ आर वी
हाउ आर वी बेनिफिशियल फॉर यू, इस तरीके से हम अपना रेज्यूमे फॉर्म करते हैं. सो देयर शुड बी अ यू एटीट्यूड. फोकस ऑन द ऑडियंस, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयर. क्वेश्चन नंबर 57, विच वाइल गिविंग एन इंटरव्यू बी डैश इन योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. अगर आपसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी जाए, बी रियलिस्टिक. वी डोंट हैव टू बी मॉडेस्ट, वी डोंट हैव टू से दैट ओके वी आर हैप्पी एक्सेप्टिंग द लोएस्ट सैलरी, बिकॉज दैट मीन्स यू आर नॉट कन्वेइंग योर मैसेज प्रॉपरली. वी कैनॉट बी अनरियलिस्टिक बिकॉज दैट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल. वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक in your salary expectation. And the last question for the day, dash refers to the amount of the space that individuals naturally maintain between each other. जब दो इंडिविजुअल्स आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में कितना स्पेस है, ये भी हमें बहुत कुछ कन्वे करता है. अगर दो लोग बहुत क्लोजली खड़े होकर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स एन इंटीमेट कम्युनिकेशन. इफ देर इज अ माइनर डिस्टेंस, वी कैन से इट्स अ पर्सनल कम्युनिकेशन. इफ देर इज अ लार्ज डिस्टेंस, वी कैन से इट इज़ अ ग्रुप कम्युनिकेशन. तो कितना डिस्टेंस है ये हमें बताता है, बट इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ distance, is the study of space. So in this video we have covered approximately 55 to 60 questions. Do tell me in the comment section how many questions you got correct, and the part 2 is the link for the part 2 is available in the description box. Do check it. If you like the video, please give a thumbs up, share it with your friends, and tell me in the comment section how did you like it. Thank you so much.